This conference will Exercise now be 2.2. recorded. Yeah, exercise X 2.2. 2.2. Okay, what is in 2.2? Word problems. Yes. Okay, so let's solve exercise 7. Sorry, it's 2.2. Okay, word problems. So you send which questions you want to ask. I have to discuss in general. Third. Third. Okay. Question number 3. Please read the question, beta. The base of an isolation triangle is 4.3 centimeter. The parameter of the triangle is 4 2 upon Hmm. 15 centimeter. Okay. Uh, any idea what to do? This question belongs to which area? Geometry, trigonometry, I mean triangle, what? Just read the question and tell me. And the base of an isolation triangle is 4.3 centimeter. The Is that parameter of the triangle is, yes. isolation or isosceles triangle? Okay. The parameter of the triangle is 4 2 Uh-huh. upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? Okay, the question belongs to isosceles triangle. Okay, Hmm. and what is the property of isosceles triangle? I don't know. Do you know about isosceles triangle? No. Actually, isosceles triangle, it means a triangle which have two sides equal. And what about equilateral triangle? Equilateral triangle in the four sides are equal and Not four beta. all, Equilateral, all three sides equal. Equilateral triangle. In triangle, there are only three sides, na? yes. So, what is the difference between isosceles triangle and equilateral triangle? Isolation triangle in the one, sorry, two. Isolation, no, no, not isolation. It is isosceles triangle. Okay. Okay. Can you see your question in the screen? Yes. Okay. The base of an isosceles triangle. First of all, let me draw an isosceles triangle for you. Okay. So what is isosceles triangle? Just look at here. Oh, sorry. Uh, this kind of triangle is called as isosceles triangle, where these two sides Hmm. are equal. Okay. Here, AB, side AB is equal Okay. to side AC. Okay. So the base of an isosceles triangle is given to you. What is the base here? BC is the base. That is how much? 4 by 3 centimeter. Can you see? Only this line, first line. The base of an Hmm. isosceles. Got it? Okay. Okay. This was the first point of the question. What about the second point? What second line says? Did it? The the parameter of the triangle is 4 2 upon 15 Not centimeter. not parameter. It is perimeter. Perimeter of the triangle. Okay. So what is the Okay. perimeter of what is the perimeter of isosceles triangle? First of all, tell me the formula. Do you know that? No. Okay. What is the perimeter, beta? Perimeter is always sum of all sides. Okay. So you don't know the equal sides. So let it be x. Fine. Okay. These equal sides be x. So both of the sides are x and x. So what is the sum of the all triangles? All sum of the all sides in this triangle? This is x plus
4/3 plus x. You got it? This is perimeter. But sir, 4 2 upon 15. That is the value of perimeter. Correct. That Okay. is the value of perimeter. Okay. So this is just a moment. पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? 4 2 upon 15 centimeter. हाँ, हम लोग वो पेरीमीटर की जगह रख देंगे. तो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है बेटा? Yes. ओके. तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ जहाँ पेरीमीटर दिख रहा है वहां आप रख दीजिए वैल्यू. और ये वैल्यू है आपका हाउ मच? 4 and 4 2 upon. राइट. अभी ये सॉल्व Right. करना है. ओके, अभी ये सॉल्व करना है. तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 15 multiplied by 4 plus 2. Are you getting this? So 4 upon 3. Oh, sorry. This is 4 upon 3. Correct. This is 4 upon 3. Now, what is 2x? 62 upon 15 minus 4 by 5. Okay. Simplify this. Find the But sir, value of minus 2x हो जाएगा ना, जो चेंज हुई है तो उसकी साइड. बेटा हमने उसको उधर ही रखा है, इसको शिफ्ट किया देखो, इसलिए इसकी साइन चेंज की. हमने फ्लिप कर दिया लिखते समय. लेफ्ट को राइट लिखा, राइट को लेफ्ट किया. हमने 2x को ट्रांसफर नहीं किया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. ओके. हमने पोजीशन चेंज कर दिया. लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया, राइट वाले को लेफ्ट. हाँ. 62 upon 15 में भी तो माइनस आएगा क्योंकि उधर वो प्लस का था. हमने साइड चेंज किया ना बेटा. देखो ये जो हमारा जो 2x प्लस ये जो दिख रहा है, हमने इसको इस साइड पे लिख दिया. हम इसको फ्लिप करके कैसे लिखते हैं इक्वेशन को? देखो 2x प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू 62/15. ऐसे फ्लिप कर दिया. अभी देखो आ गया ये. अभी ट्रांसफर करो. क्लियर है ये? ओके. हाँ, अभी सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है वैल्यू? 1 minute. 2 हाँ, जस्ट अ मोमेंट महक ना, आई एम कमिंग. ओके. Till then you find which question you want to ask. ओके सर. So 4. Okay, Mahek, what is the answer? So जो 62 upon 15 and minus 4 upon 5 and 117 upon 174 upon 15. ये 4 upon 3 है. ओके, तो 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 62 अपॉन 15. एलसीएम दोनों का 15 होगा, इसलिए आप 5 मल्टीप्लाई करोगे. Yes. ओके, व्हाट अबाउट दैट 42 अपॉन 15 2x. व्हाट इज x नाउ?
1 minute. So x is not fine. हाँ, it is not seen. अभी दिख रहा है? Yes. But sir, 166 upon 15 is a 62 upon 15 minus 4 upon 3 value. What is the value? It is 21 upon 15. Okay? Hello. Yes. Is it the right answer or wrong? Yes. Right answer, no? Okay, tell me one more question. 1 minute. Sir, 42 upon 15 निकलेगा ना? 42 upon 15 तो आया, बट 2x भी है ना बेटा, तो हम x की वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? ओके ओके उधर 2 हाफ हो जाएगा ना? ओके. आ रहा है समझ? यहाँ देखो कट हुआ है, कैंसिल हुआ है यहाँ पे. यस. और कोई क्वेश्चन है तो बताइए. सर फोर्थ. पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. Okay. The question is about numbers. Yes. Okay. So can you see the can you see the question on the screen? Yes. Okay. So please read the question once again. Sum of two numbers is 95. So let first number be x. So what will be the another number? So 95 minus x क्यों लिया? क्योंकि अगर बेटा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर मैंने 50 रुपए में से आपको 10 रुपए दिए तो मेरे पास कितने बचे? ओके ओके Got it? ओके. अब ये exceeds का मतलब क्या होता है? If one exceeds other by 15, exceeds मतलब प्लस. ठीक है? ओके. तो exceed कर रहा है. कौन exceed कर रहा है? एक जो है वो दूसरे से exceed कर रहा है. How much? 15. ये समझ में आया मैंने क्यों लिखा ये? यस. ओके, तो फिर बस आपको सिंप्लीफाई करना है. बताइए कैसे होगा सिंप्लीफाई? ब्रैकेट खोलिए, सिंप्लीफाई करिए, सारे वेरिएबल एक साइड रखिए. x plus x 2x. x plus x 2x. 95 plus 15. 1 minute. 2x is equal to 80. What is the another number? But so yes. What are the numbers? 40, 55, 110. Yeah. 110 is not the number, the required number. Only two numbers we required, no? तो आपने ये 95 माइनस x क्यों लिया? क्योंकि बेटा उनका सम 95 है ना. तो अगर एक नंबर मैंने x लिया तो दूसरा नंबर मुझे क्या लेना चाहिए बताओ? x लेना चाहिए. बट जब 40 फिर उसमें से 95 में से कुछ माइनस तो होगा नहीं. बेटा जैसे अगर मैं बोलूं कि दो नंबर का सम 95 है और अगर उसमें से एक नंबर 40 है तो दूसरा क्या होगा सोच के बताओ? 95 में से माइनस करोगे? ओके ओके. आ गया समझ में आपको ये क्वेश्चन?
आ गया था। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन है बताइए। एंड 8 क्वेश्चन नंबर 8, ओके। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add to up to 74. Find these numbers. वेरी गुड। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब समझते हो बेटा? कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जैसे नंबर No. होते हैं ना, 5, 6, 7, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, एक के बाद एक। 5, 6, 7, ओके। अगर मैं बोलूं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर 10 से स्टार्ट करो, तो आगे के नंबर क्या होंगे? 10 के बाद 11, 12। 11, 12. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें +1 होता है, Okay. राइट? तो हम ऐसे ले सकते हैं x प्लस x हाँ प्लस 2 x बिल्कुल x बिल्कुल, प्लस 3. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। 2. ये समझ में आया आपको? बट तो 3 फिर कहाँ पे जाएगा? 3 ये x तो यस। बेटा, x में आपने 1 जोड़ा तो x+1 आया, इसमें 1 जोड़ा तो ये आया। देखो एक एक +1 हो रहा है। बट सर 2 फिर 3 कहाँ पे जाएगा? 2 से 3 कहाँ रहेगा? यस सर, फिर x प्लस 3 भी तो लेंगे बाद में। क्यों लेंगे बेटा? अगर हमको 3 नंबर लेने हैं तो हम x+3 क्यों लेंगे बताओ? तो सर x एक प्लस 3 का क्या करेंगे? x+3 तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों कुछ करेंगे? उसका तो लिया ही नहीं हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है देखो। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या क्या मल्टीप्लाई करना है बोलो? 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है x, 3 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x+1। सर सर ये नेक्स्ट लाइन जो आप कर रहे हो वो समझ में नहीं आई। क्यों बेटा, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसमें लिखा है ना, देखो ना, आप पढ़ो ना, जो लिखा है वो पढ़ो। तो मल्टीप्लाइड बाय लिखा है ना? यस मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा है? बट सर आपने इधर x प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर लेना था। अगर हम नंबर एक नंबर x लेते हैं तो दूसरा उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताओ? x अगर एक नंबर x x है तो प्लस 1 उससे एक ज्यादा x+1, उससे और एक ज्यादा x+2। x प्लस 2 तो हमको कितने नंबर लेने थे? 3 लेने हैं कि 4 लेने हैं? 3. 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिया। समझ में आ रहा है आपको अभी? ओके तो ये आ गया 2x देन 3x+3, ब्रैकेट ओपन करो। 4x प्लस 8 8। ओके, अभी सिंप्लीफाई करो, सारे x वाले टर्म एक साथ ऐड कर दो सबको। कितना आ रहा है? 9x और 8+3 11 होता है ना? 74 माइनस 11 हाँ, हाउ मच? 63. इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 63/9। बट सर हम 9 से 63 को कट भी तो कर देंगे। कट किया ना बेटा, 7 आया ना, देखो। ओके तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे आपके? 7, 8, 9. या 7, 8, 9 इज द आंसर। परफेक्ट। आगे आपको समझ में अभी? यस एंड सर 11 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है? Bachchan's father is 26
years younger than Baichung. Grandfather is and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three in 135 years. What is the age of each one of them? Okay, देखो Baichung's father is 26 year younger than Baichung's grandfather. Okay, Okay. तो कौन कितने लोग हुए यहाँ पे, पर्सन कौन कौन है? एक बाइचुंग हो गया, एक Baichung देन father, एक उसका फादर हो गया, और grandfather, ओके ग्रैंडफादर, ये 3 लोग हो गए यहाँ पे। अब सबसे बड़ा कौन होगा एज में? grandfather. देन फादर, देन बाइचुंग। ओके, ये Okay. स्टोरी समझ में आ गई जो लिखा है? तो बाइचुंग के जो पापा हैं वो उनके दादा से कितने छोटे हैं? 26। बाइचुंग के Okay. फादर, बाइचुंग के फादर। तो स्टोरी किसके बारे में है? बाइचुंग के फादर। Baichung. बाइचुंग का Yes. जो फादर है वो अगर एक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे? ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? यंगर है ना? X plus 26, X plus 29. x प्लस 29 की x माइनस 29? So माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि छोटा है ना बाइचुंग। बाइचुंग अपने पापा से 29 साल 29 ईयर छोटा है, और उसके दादा जो हैं उससे 26 ईयर बड़े हैं। लेकिन सर उसमें Baichung फादर की एज तो लिख दी है, तो आपने एक्स क्यों लिखा? हाँ, अब कहाँ बाइचुंग की फादर की एज कहाँ लिखी है? इधर Baichung फादर इज 26. यंगर देन बाइचुंग। यंगर मतलब छोटे हैं। ओके. तो इसीलिए ग्रैंड, हमने अगर बाइचुंग के फादर को अगर एक्स लिया है तो ग्रैंड फादर क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस 26 लेंगे ना, बड़े हैं क्योंकि वो। ओके. और बाइचुंग का एज क्या लिया हमने? 29 ईयर ओल्डर है बाइचुंग से। ओल्डर मतलब बड़े हैं, तो बाइचुंग छोटा हुआ, ओके. तो इसलिए उसको माइनस 29 कर दिया। ये समझ में आ रहा है? ओके. अब तीनों का सम कितना है? सम ऑफ ऑल एज, तीनों का सम एक्स कितना है? एक्स नहीं एक्स नहीं, प्लस हाँ 26 ठीक है, वेरी गुड। तो एंड तीनों का सम एक्स प्लस एक्स माइनस 20. x माइनस 29, x प्लस 26, ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो तीनों का सम हो रहा है 135। फाइन। तो आपको x सॉल्व करके ओके. बताना है कितना आएगा। x बताओ। 1 मिनट. 45. x की वैल्यू आ रही है 138 डिवाइडेड बाई 3। सर आपने 3 माइनस क्यों किया? कहाँ से क्योंकि लिया सर आपने 3? हाँ बेटा, इसलिए क्योंकि 29 और 26 का एडिशन करो, माइनस 29 और 26 का। एक मिनट. यस. तो बाइचुंग का जो फादर है उनकी एज कितनी हो गई? 46। सर ये समझ में नहीं आया सर, आपने ये -3 कहाँ से लिया? बेटा ये देखो ना, 29 माइनस 29 और 26 दिख रहा है आपको? यस. तो माइनस 29 प्लस 26 क्या होगा बेटा? पापा. ओके. आपको समझ में आया ये? माइनस 29 प्लस यस. 20। ओके, तो अभी x की वैल्यू समझ में आ गई आपको कि 135 प्लस 3 138 होगा। यस. यहाँ तक क्लियर है? यस. 26। तो फादर की एज, या x जो हमने फादर की एज लिया था वो 46 है, करेक्ट?
ओके ओके बट तो सर अगर इसके आगे फिर वो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम बोल रहे हैं, सारे के एज निकालने हैं आपको। 46 हाँ तो एंड अगर हम 47 48 हाँ वेरी गुड, अगर हमने ना नॉट 47 48 बेटा, ये देखो, ये हमने 46 निकाला बाईचुंग के फादर की एज, तो बाईचुंग कितने साल का यस हो जाए? 46 माइनस 29, हाउ मच? 7 सर 17, 7 7 और 17 बेटा। ओके बाईचिंग 17 और ये कितने के हो जाएंगे ग्रैंडफादर? ओके x हाउ plus मच? 26 46 46 plus 26, ओके is it 72? 72 So ओके what are यस their ages? So father is of 46, बाईचुंग कितने का Baichung होगा? is 70 And what about grandfather grand? is 72 72. That's the answer. Clear है बेटा? okay Okay, any more question you want to discuss? 13 13. 15 Okay, 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? okay. So what question is saying? Tell me. 15 years Fifteen रवि की जो years एज from है वो now. 15 years से फोर From now. टाइम हाँ. ओके एंड Re- what is present time is of Ravi 15 years from now. 15 years from now इसका मतलब बताओ, आज से 15 साल पहले कि 15 साल बाद? आज से 15 साल पहले पहले नहीं, बाद. 15 years from now Ravi's age will be from 4 times his present age. Not getting? no 15 years from now. 15 years from now. 15 years after 15 years from now. तो नाउ मतलब प्रेजेंट एज है अभी, ठीक है? नाउ का मतलब यहाँ से है कि ओके प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को अगर हमने x ले लिया तो 15 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर 15 इयर्स क्या होगा? ओके ओके x प्लस 15 हो जाएगा। यस और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सो पर x प्लस 15 हाँ x प्लस 15 जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा प्रेजेंट एज के, यही लिखा है। नो सर x प्लस 15 तो सर इक्वेशन क्या होगी फिर इसकी x प्लस 15 इज इज इक्वल टू इक्वल टू 4x। 4x हाँ ओके ओके, अभी क्या होगा सोल्यूशन इसका? एक मिनट Is it the right answer? The Ravi's present age सर is 5 5 years. Okay. -5 Not -5 बेटा, 5 एज -5 कैसे हो सकती है? -5 क्यों आएगा बताओ? बिकॉज सर जो उधर माइनस इधर प्लस 15 है तो इधर देंगे तो -15 हो जाएगा ना। हमने इसको फ्लिप कर दिया ना बेटा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिख दिया। यस देखो, सर लेफ्ट लिखा था उसको राइट लिख दिया और राइट हमने लेफ्ट लिख दिया। अभी आपको समझ में आ रहा है? यस और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं बेटा?
है। अभी दिख रहा है क्या? यस। तो जब लिख रहा था तब नहीं दिख रहा था क्या आपको? पॉश हो गया था लग रहा है ना? यस। हाँ चलो कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? एक मिनट। 13। हाँ ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? कुछ समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ो। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ओके, रैशनल नंबर मतलब समझते हो आप? Yes. ओके, तो रैशनल नंबर हमने सपोज x ले लिया, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/2 बोल रहा है, ठीक है? Yes. And x plus 2/3. तो क्या क्या करना है? सबसे पहले x मल्टीप्लाइड बाय 5/2 एंड ऐड करने बोल रहा है। कितना Yes. ऐड करने बोल रहा है? 2/3। तो कितना मिल रहा है? -7/12 मिल रहा है। But sir, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x into 5/2 is equals to x plus 2/3. नहीं बेटा, ऐड करना है आपको। यहाँ लिखा है ना क्वेश्चन में कि आपको x को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है 2/3। सर 2 से थोड़ी ना करेंगे। 2/3 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2/3 से ऐड करना है। ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई किसको करना है? 5/2 को। 5/2 को मल्टीप्लाई करना है आपको x से, ओके। और ऐड करना है आपको 2/3 को। ओके ओके। ओके, अभी इसके आगे सॉल्व करना है आपको। सिंपलीफाई कैसे करेंगे बताइए? एंड x 1 मिनट। -7/12 -2/3। सॉरी x into 19/6। वैल्यू क्या आ रही है? एक मिनट। x into 19/6। x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है -7/12 देन -2/3। पहले ये सॉल्व करो, यहाँ 5/2 लगा रहेगा। ये सिंपलीफाई करो बेटा, कितना आ रहा है? तो समझ नहीं आया। देखो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया ना 2/3 को, तो माइनस हो गया उधर जाके, और इनका एलसीएम 12 है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर समझ नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन द हाँ, कहाँ स्क्रीन? पे नहीं? ओ सॉरी, ये अभी दिख नहीं रहा है बेटा आपको? ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ओके ओके सॉरी। तो अभी आपको दिखने लग गया कि कहाँ कहाँ क्या चीज हो रहा है। जैसे 2/3 है तो हमने उसको माइनस कर दिया। ओके सर, बट 5/2 किधर? अभी हमने उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया बेटा, वहीं पे है वो, ठीक है? ओके तो अभी हमने क्या किया कि ये देखो, यहाँ पे जो आपका 5x/2 है वो ये आ सर रहा है। आपने। ओके तो 5x/2 की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली? -15/12 आ रहा है। यस। अभी सिंप्लीफाई करिए इसको, क्या आएगा? एक मिनट सर। x की वैल्यू आ रहा है -15/12, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। 5 1 जा, 5 3 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 2 जा। x की वैल्यू -1/2। बट सर आपने रेसिप्रोकल क्यों किया उसको 5/2 को? ब्रैकेट वहां चला गया ना बेटा, 2/3 माइनस हो गया, देखो इधर आके।
नहीं, इधर जो आपने सॉल्व किया है 5x/2 इज इक्वल टू -15/12, तो आपने इसको कट करने के लिए रेसिप्रोकल क्यों कर दिया? क्योंकि जब माइनस जो मल्टीप्लीकेशन में ये वाला बोल रहे हो ना, मल्टीप्लीकेशन में जब उधर जाएगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल ओके, से मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन मतलब यही होता है ना रेसिप्रोकल से। तो जो 2 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, 5 जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ओके, अभी आया है समझ में आपको? यस। ओके, सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? वो -1/2। ओके, तो ठीक है बेटा, इतना काफी है डाउट के लिए। क्लास ऑफ करें अब? सर 1 क्वेश्चन और। हाँ बिल्कुल, बताइए। 16। 16, ठीक है। एक्चुअली बेटा मुझे कहीं जाना है, तो ये हम बाद में कर लें क्वेश्चन। ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय।